And now, can you please go to the QuickBooks tab, QuickBooks tab? Yeah. And yeah, okay. Actually, you need to install Zoom application, desktop application. But instead of that, you have started Zoom in web browser. Yeah, because I can't able to download the application on laptop. That's why. Why? Is that your company's laptop or what? No, no, it's not my company's laptop, but I No. can't able to download. Okay, let's do it. Let's do it. Let's go with the Zoom then. Download Zoom. No, no, download Zoom. Don't worry. See, Harshal, in my class, I'm not teaching only account. I'm Yeah, also teaching how to manage all these things. yeah, Okay. yeah, sure. Download Zoom app. Yes, please click on it. Download 64-bit. It is already there. You just need to run it. On the right side, you can see the downloads, right? Yeah. Yeah. Okay. And you have already downloaded, I guess. Yes, I have downloaded. Okay. Now run it. What was the error was coming? No error was coming. It's installizing. Okay. No, no. Before that, when you try to download that, was there any error? No. Okay. So that should Just, be on your desktop also. Did you check that? no, actually, that's not Yeah, on my please. desktop. Yes. Just a moment. Yeah, it should be there then. Join meeting. Yeah, you can just type the link, that personal link which I shared with you. No, 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 no need to do that again and again. This is again, again an installing application. Actually, just go on the start menu and type Zoom on your computer. Click on window. Yeah, type Zoom. Okay, join a meeting. Yes. Okay, and join. Meeting passcode? What is asking for meeting passcode? We haven't set meeting passcode. So, what is a meeting passcode? Actually, we haven't created meeting passcode. Okay, 128065. 128 065. 65. Now click on join. Okay, now close that browser Zoom. Yeah. Yeah, you can close it now.
Done? Yeah, it's done. Okay. Okay, now you can share your screen. Yeah, now I am able to send you request for your Yeah. computer access. Okay, now I'll be able to explain you everything in a speed way. See now, the first of all thing, we have these three tabs: your practice, Yeah. bookmarks, and your books. Practice in the sense our clients. Okay, if you have multiple clients, so how this account, how it gonna work? Are you comfortable in Hindi also? Yeah, I'm comfortable. Okay. सो इसमें क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। ओके, Mm. सो ऐसा तो है नहीं कि हर एक क्लाइंट का यूजर आईडी पासवर्ड वो आपको देंगे और आप Mm. उसमें लॉगिन हो जाओगे, राइट? सो व्हाट दे गोना डू, दे आर गोइंग टू असाइन देयर कंपनी टू यू। You will they will add your email ID, your access into their account. So when you log in into this account, in your account, in accountant login, you can see their companies over here. When you click on client, okay, so here you will see, इसमें आप ये भी देख पाओगे कि क्या कौन से बुक कीपिंग के क्लाइंट कौन से हैं, पेरोल के क्लाइंट कौन से हैं और मल्टी एंटिटी कौन सी है, मतलब सारी चीज जो करनी है। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन ऐड क्लाइंट्स। नाउ अनदर थिंग, ये तो हो गए क्लाइंट की बात की, जो हमें क्लाइंट मिलेंगे। बट Mm. अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट आवर टीम एंड वी हैव टू इनवाइट देम टू कोलैबोरेट। For the collaboration, we have to invite them. Now here what I am going to do, I am going to add myself into your company. So whatever you will do transactions, I'll be able to check using my login. I don't need your login. Got my point? Yeah. Okay, and from here we can select roles. See, we have to read each and every title. This is personal info, and now this is about roles. Mm. So from here, if we have standard no access, standard means user can only view, but they can't edit anything. No form access, account management only. Oh, they can't access any company's list of companies. They can do only accounting work. Standard limited account, limited customers only. Then limited vendors only. You know, so sometimes there are few candidates are saying they were managing AR only in a company or AP only company. So this is AR and AP. Then sometimes AR and AP both. Payroll only. Sorry, access without payroll. Sometimes company admin who can manage everything, then payroll manager, expense manager, bill approval, inventory manager. So these are different kind of roles which we can assign as per our user's profile. And here I'm gonna assign myself standard all access. Okay, so once you send invitation, see now this now here, from here I have to send invitation. So as soon as you send invitation, I'll get email from Intuit company. As of now you can see invited. Okay, now I'll have email from your from Intuit. What is the name of your company? You have mentioned Swati, right? Yeah. Let me share the screenshot how invitation That's sure. customers are getting, or means users are getting, so that you can get an idea how it looks like. Uh, where is what's okay? See, this kind of invitation I received from your end. Got it? Are you following now?
Yeah, yeah, I'm following. Okay, so this kind of invitation I'm getting. So once I accept it, then I'll be able to check your transaction or your practices in using my login. Right. After, sorry, after accepting the link, there the status will be active. Yeah, Okay. just a minute. I'm just accepting. I need to add it. I need to add one code. Or now I'm all set. So now you can see the invitation will be showing as of now invited. Okay, and now when we refresh it, now it is showing as accepted or active. Okay, this is primary admin. Okay, your Yeah. email ID, and this is me. So you can do transaction only, transaction also. I also can do transactions. But if I want to check your transaction, so I can use my login, my user ID, and my password. So I can access your company here also, and I can check the transactions. See, just a minute. I'm sharing one screenshot. Now you can see. You can see this is my login. On the right side, you can see you, but the company name is your. Yeah. Got it? So this is the first step of account sharing, where we can add candidates in our team. Now this is Pro Advisor trainings and everything, which we're gonna cover after our bookkeeping, accounting, payroll, sales tax, everything covered. Then we will go for this. Yeah. Okay. All right. Now here apps, work. This is kind of projects which we can create. We are working for new clients. So that becomes project for us, right? So we can create project here and manage them. Then standalone task. If we have certain task, like to get information from a new client about their entity, about their businesses, about their tax returns. Okay, so we can create each and every task here also. This is work related task. All right. Okay, that is the reason they have given title your practice. Okay, Yeah. now bookmark means I hope you are aware about bookmarks. What I would like to Yeah. add, okay, so it's coming there. Now our main concern is here. This is our bookkeeping. This is our bookkeeping. Yeah, right. All Client right. overview, dashboard, Yeah. task. This is company specific task. Okay. Yeah. And then transactions, bank transaction, app transaction, receipt, reconciliation. In short, bank related transactions. Yeah. All right. Okay. Then advanced accounting. So after enter the transaction, we have to bifurcate, or the app only bifurcate the things. No, no. See, when we integrate bank account into this, we get our bank transaction itself into this. All right. And we need to create rules. So accordingly, the rules, the transaction posted itself. Mm. Like we say, we are getting google.com in the description of bank transaction. And if we create a rule, like okay, google.com jahan pe bhi hai, that should be posted under advertisement and promotion. So when we import transaction from bank account, those transactions automatically posted into the advertisement marketing. So Yes. we do not need to spend single seconds to record that transaction. All right. That is mini automation as of now. After that, we have so many automations. Advanced accounting, revenue recognition. I hope you are aware about it. Yeah.
This is a new tool which they have integrated recently. New schedule, invoice, date, invoice, service date, product, add new product. Just a minute. We are not posting transaction. I'm just going through with that. Yeah, sure. Because yesterday it was not showing something. Okay, got it. And see, QuickBooks has their universal rule. Wherever you see this kind of button, green and white, on the right side you can see new schedule. From there you can record transactions. Okay, आप कोई भी window open करोगे, so you will see this kind of button. This one, new schedule. Can you see that now? No. New schedule. Your new schedule, right? Yeah. Okay, so then from here it is now let's go to the left panel, sales, expense, reports, payroll, time management, then projects. This project means particular client-wise project. All right. Okay, where we enable a project-wise profit and loss in accounts and settings. Okay, so we can see profitability by projects also. Yeah. Financial planning, budget and forecasting, workflow automation. Here you can see reminders, approvals, notifications, templates. So workflow automation means if you are approval, you are just approving transactions. Okay, Yeah. and if you create such kind of rules, so there should be the transaction needs to be auto approved. So this is gonna work from here. This Yeah. I'm just giving you basic idea, but we are going for each and every tab in detail. Okay, this is Yeah. just basic idea about the software. Then taxes, sales tax, 1099 and payroll. Okay, we can enable everything from here. Sales tax, you aware about this word. Payroll tax also aware. Do you know what is 1099? No. It's a accounting firm. No, 1099, it's about just like Form 16. Sorry. Form 16. Form 16. Yeah, All in right. Indian accounting, we issue Form 16 to the employees, right? In the same way, whatever amount we have paid more than $600 Yeah. to individual person rather than employee. So we have to issue Form 1099 to them. $600 से ज्यादा किसी को भी अगर हमने पेमेंट किया हुआ है इंडिविजुअल पर्सन को और वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, then we have to issue 1099. That is the golden rule and straightforward. Okay, to the individual person only, not to the company. Okay, कंपनी को नहीं, इंडिविजुअल पर्सन को तो ही हमें इश्यू करना है. एंड एक दो और उसके अंदर है बेसिक पॉइंट, जैसे कि रॉयल्टी एंड डिविडेंड. अगर $10 से ज्यादा पे किया हुआ है और वो किसी को भी पे किया हुआ है तो उसका भी 1099 इश्यू करना होता है. ओके, एंड फिशिंग बिजनेस के अंदर अगर ट्रेडिंग के लिए आपने फिशेस वगैरह परचेस की है और उसका पेमेंट किया हुआ है तो भी आपको 1099 इश्यू करना है. सो दीज आर 3 गोल्डन रूल. दैट्स इट. डिटेल में हम जाएंगे इसके लिए, बट ये गोल्डन रूल है. ओके, देन लैंडिंग एंड बैंकिंग मतलब लोन्स एंड समथिंग. ओके, लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स ओडी अकाउंट. ओडीसी, लाइन ऑफ क्रेडिट. मतलब एक जगह का ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो कहते हैं ना बैंक में. ओके, और कैश क्रेडिट अकाउंट. सो दिस इज काइंड ऑफ दैट. देन शिपिंग. शिपिंग में क्या होता है? शिपिंग इंटीग्रेशन. क्विकबुक्स प्रोवाइड, जैसे यहाँ पे हमारे इंडियन पोस्ट रहता है, वहाँ पे यूएसपीएस है. यूएसपीएस पोस्टल सर्विसेज, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज. Postal services. Okay,
देन Yeah. DHL भी आपको पता है, Yeah. राइट? सो वी कैन इंटीग्रेट ऑल दोस एप्लीकेशन इनटू दिस सॉफ्टवेयर। जो भी शिपमेंट वगैरह होता है, सो वी कैन एंड आवर कस्टमर कैन गेट लाइव स्टेटस ऑफ दैट शिपमेंट Mm. ऑन देयर मोबाइल। ओके, तो वो भी Yeah. इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है। सो नाउ लेट्स गो विथ, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फो अबाउट द सॉफ्टवेयर। अब Yeah. हम कंपनी का सेटअप क्रिएट करेंगे। सो फ्रॉम राइट साइड देयर इज अ ग्रे आइकन, फ्रॉम हियर वी कैन सेट, वी कैन क्रिएट सेटअप फॉर द कंपनी। अब हर्षल एक काम करना, आप ये जो है ना, ये इतना जो स्क्रीनशॉट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और खाली याद कर लेना कि सेटिंग्स के अंदर कौन सी चीज़ें आती है। जस्ट बेसिक, एकदम मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रैंडम आइडिया होना चाहिए कि अगर मुझे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाना है कि रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स है, या मुझे कोई डेटा इंपोर्ट करना है, या मुझे कंपनी सेटअप करना है, या मुझे टैग है या रूल है कुछ भी क्रिएट वगैरह करना है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? सो यू विल हैव इट फ्रॉम हियर। Okay, and now let's go with some basic discussion about any accounting software or any software। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनता है अकाउंटिंग, तो उसके तीन पार्ट रहते हैं। द फर्स्ट वन इज डेटाबेस। ओके, डेटाबेस मीन्स एक्सेल की जो फॉर्मेट होती है ना, इट इज लाइक दैट। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस हर्षल। Yeah, sorry for that. ओके, या ओके, Yeah. ओके। सो एक होता है डेटाबेस, एंड डेटाबेस हैज सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट लाइक एक्सेल। एक्सेल में जो जिस तरह से रहते हैं वैसे ही डेटा अंदर पोस्ट होता है। एक्सेल के कॉलम कैसे रहते हैं? सो डेटाबेस हैज द सेम स्ट्रक्चर। नाउ द सेकंड इज फॉर्म, FORM, फॉर्म। ओके, तो Yeah. फॉर्म, फॉर्म में कैसा होता है कि डेटाबेस में कोई भी चीज क्रिएट की है और एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो फॉर्म के अंदर आप जो भी डेटा फीड करोगे, जैसे कि अभी आपने साइन अप किया क्विक बुक्स के अंदर, तो जब साइन अप कर रहे थे ना, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्म। उसमें आप जो भी डेटा Mm. ऐड करते हो, वो डेटा जाता है डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ओके, नाउ Yeah. वी गो विथ रिपोर्टिंग। हम कोई भी रिपोर्ट रन करते हैं तो उसके अंदर डेटा शो होता है। तो वो डेटा कहाँ से आता है? जो हमने फॉर्म के अंदर डेटा फीड किया था, वो डेटा गया डेटाबेस के अंदर, और वही डेटाबेस का डेटा कॉल होके आता है रिपोर्ट्स के अंदर। Right. गॉट इट? ओके, तो ये सिंपल चीजें होती है कि आपने ये चीज यहाँ डाली और ये चीज यहाँ डाली और ये चीज यहाँ पे आई। तो ये IT का एक पार्ट है, और कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। All right. ओके, एंड Yeah. Okay. अब होता क्या है कि ये सारी चीजें, फॉर्म सेटअप करना या डेटा, कौन सा डेटा कहाँ पे कॉल करना है, इसके लिए होता है पूरा एक सेटअप मॉड्यूल, तो जिसको अभी हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे जो भी रूल्स वगैरह सेट करेंगे, उस हिसाब से डेटा पोस्ट होगा, और उसी हिसाब से डेटा हमें डिस्प्ले होगा, और उसी हिसाब से सारी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। ओके, Yeah. Okay. सो लेट्स गो विथ कंपनी सेटिंग फर्स्ट। यहाँ पे आप आपका लोगो सेट कर सकते हो। वी हैव टोटल 7 टैब्स, 8 टैब्स, बट ओनली वी आर यूजिंग ओनली 7। कंपनी सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस है, पेमेंट्स इंटीग्रेशन है, बैंकिंग के क्विक बुक्स जो है वो है, मतलब बैंकिंग लिंक, आपको क्या कह सकते हैं, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन लिंकअप वगैरह करने वो है, सेल्स, एक्सपेंस, टाइम शीट, Mm. एंड एडवांस मॉड्यूल। ओके, सो वी आर गोइंग टू रिव्यू ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट। यहाँ पे आप लोगो सेट कर सकते हो, देन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको याद हो तो आपने जब साइन अप किया था तब आपने ये डेटा ऐड किया था, राइट? Yes. So this Yes. is kind of reporting format. Accruals. We have two accounting method, Yeah. cash basis and accrual basis. Okay, so we are following accrual basis. Employee identification number. EIN means employer identification number. Number. जैसे Yeah. यहाँ पे हमारा GST नंबर होता है, in the same way they have their EIN. Mm.
That's टैक्स फॉर्म yeah. टाइप ऑफ एंटिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा टैक्स फॉर्म एप्लीकेबल होगा. इफ इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप सो 1040, पार्टनरशिप देन 1065, स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन 2 or more owner then 1020s, corporation 1 or more shareholder so 1120, non-profit organization तो 990, unlimited liability और not sure then other none. ओके तो ये हम हाँ. सेव कर देते हैं. देन कैटेगरीज, ट्रैक क्लासेस एंड ट्रैक लोकेशन. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासेस? क्लासेस का मीनिंग ये होता है कि आपकी कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट. Yeah. देन आईटी डिपार्टमेंट है. तो आप कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. Mm. Okay, so whenever you record any transaction, you need to assign department name. Mm. Okay, see from here you are going to make it enable. Okay, or Yeah. one to each row in transaction. What is the meaning of this? And one to entire transaction. One to entire transaction का मीनिंग समझ लेते हैं तो ये ट्रांजेक्शन, ये इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा. Yeah. आप एंटायर ट्रांजेक्शन को सिर्फ एक क्लास असाइन कर सकते हो और ये है उसका रिवर्सल. अब जितनी लाइन आइटम डालोगे हर एक लाइन आइटम में आप क्लास असाइन कर सकते हो. Yeah. ओके सो सेकंड वन इज बेटर. हाउ? अगर हम पेरोल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी एक सिंगल एंट्री डाल रहे हैं, गॉट इट. तो उसके अंदर 10,000 जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, 5,000 जो है वो आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है. सो दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू, One to each row transaction. राइट. ओके Mm. एंड लोकेशन. आपकी क्लासे ये तो है बट आपके पास मल्टीपल लोकेशन के अंदर आपका बिजनेस भी है और सारा अकाउंटिंग एक ही जगह हो रहा है. तो आपको दूसरे लोकेशन का खर्चा कितना हुआ या तो कौन सा लोकेशन का कितना खर्चा हुआ, अगर वो जानना है तो आप लोकेशन इनेबल कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप उसको असाइन कर सकते हो. Mm. ओके जैसे कि अलग अलग प्रॉपर्टी भी आपकी हो सकती है, अलग अलग प्रॉपर्टी है रेंट आउट की हुई है, उन पे जो भी खर्चा होता है, कौन सी प्रॉपर्टी में कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ से हमको पता चल सकता है. ओके सो, All right. okay so if here we are going to make location enable. क्लास और लोकेशन दोनों का पता चल चुका ना कि क्या होता है. Yeah. Got it. ओके ग्रेट. देन कस्टमर लेवल. अगर कस्टमर जो है वो हमें उनको एज अ कस्टमर शो कराना है, मतलब लेवल मतलब टाइप ऑफ. जैसे कि क्लाइंट है, सर्विस सेक्टर है तो उनको क्लाइंट कहते हैं, रेगुलर सेलेंगे तो कस्टमर कहते हैं. चेक, अगर हम ये कंपनी का अकाउंट एज एन एनजीओ मैनेज करते हैं तो हम डोनर्स कहेंगे, जो भी इनकम आएगी उनको. होटल इंडस्ट्रीज है तो हमें पेमेंट कौन देगा? गेस्ट. जो भी गेस्ट आएंगे रुकेंगे वो लोग तो हमें पेमेंट देंगे. देन सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल कोई है तो ये हो गया मेंबर. अगर हम हॉस्पिटल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओके, For और हमारे Christmas. पास जो पेमेंट आ रहा है तो वो कौन, हमें जो पेमेंट देगा वो क्या होगा? पेशेंट. Patient. हम उनको कस्टमर नहीं बोल सकते, वरना क्या होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज में वो गलत वर्ड हो जाएगा, राइट. हाँ. ओके सो दैट इज व्हाई एज पर द इंडस्ट्रीज दे हैव प्री डिफाइन दिस. अगर हम रेंटल प्रॉपर्टीज में हैं तो For अगर हमें रेंटल इनकम times. आ रही तो हम टेनेंट कहेंगे, गॉट इट. Yeah, sure. ओके Yeah, सो got it. दैट Yeah. इज व्हाई दीज आर द लेबल्स. तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज हमको इसको रहने देंगे. Mm. लेट्स सेव दिस फर्स्ट. ये हमने खाली कंपनी सेटअप का फर्स्ट पैरा किया है. नाउ वी गो अनदर वन, नोटिफिकेशन. अब ये नोटिफिकेशन का प्रेफरेंस इस मतलब ऐसा है कि आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, जो ऑनर है एडमिन, राइट. इसमें से कोई भी इवेंट होती है तो उनको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए. प्रोजेक्ट Yeah. जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं उसमें कोई भी प्रोजेक्ट का स्टेटस चेंज होता है या प्रोजेक्ट का नाम चेंज होता है या प्रोजेक्ट जिसको असाइन किया था आप दूसरे को असाइन कर रहे हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए. कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट में से डिलीट होती है तो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए.
ओके, सो दिस इज अबाउट नोटिफिकेशन, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट नाउ दैट Yes, sir. जस्ट अ मिनट. Okay, payment. Manage your payment in one place. Send payable invoice and see when customer view pay them. Your book will update automatically with every payment you process through QuickBooks. अब ये ऑप्शन क्या है, कि QuickBooks के अंदर हमें एक ऑप्शन दिया गया हुआ है कि जिसके थ्रू जब भी आप इनवॉइस कस्टमर को सेंड करते हो तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है रिव्यू एंड पे. ओके, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर ट्रांजेक्शन मतलब जो इनवॉइस होता है, रिव्यू एंड पे पे क्लिक करते ही उनको पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं और वो वहां से पेमेंट कर सकते हैं. और वो जैसे ही पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमारे बैंक में भी आ जाता है, क्विक बुक्स के अंदर भी अपडेट हो जाता है. हमें मैन्युअल ट्रांजेक्शन नहीं डालना होता है. ओके, सो दैट इज द थिंग. हाँ. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर क्विक बुक्स चेकिंग, मतलब बैंक इंटीग्रेशन. क्विक बुक चेकिंग में सर क्विक बुक से खुद की बैंक भी प्रोवाइड कर रहा है अभी, कि जो भी ट्रांजेक्शन सारी चीज वहाँ पे मैनेज हो जाए. नाउ सेल्स, ये है थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज. अभी तीन चीज ज्यादा ध्यान से देखनी, सेल्स, एक्सपेंस एंड एडवांस. ओके, तो सेल्स के अंदर है कि कोई भी इनवॉइस अगर हमें हम कस्टमाइज द वे फॉर्म लुक टू योर कस्टमर. कस्टमाइज लुक एंड फील मतलब ये है अबाउट इनवॉइस टेम्पलेट्स. इनवॉइस का जो टेम्पलेट, इनवॉइस का टेम्पलेट मतलब आपको पता है ना, इनवॉइस जो फॉर्मेट जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट. लेट मी क्लिक ऑन इट एंड लेट मी शो यू. ये जो इनवॉइस का फॉर्मेट है Yeah. इसे मैनेज कर सकते हैं. ओके, Yeah, okay. कलर की हम कलर चेंज करना, कलर भी कर सकते हैं, लोगो ऐड करना, लोगो भी कर सकते हैं. Yeah, फॉन्ट got अगर it. चेंज करना, फॉन्ट भी कर सकते हैं. अब ये है प्रेफर सेल्स फॉर्म कंटेंट, मतलब जो सेल्स की सेल्स इनवॉइस रहता है उसका जो फॉर्मेट रहता है. फर्स्ट डे आपको बोरिंग लगेगा, कल से जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगे कस्टमर सेंटर के, देन यू विल रियलाइज को ओके कितना जो फास्ट में हो रहा है. अभी मैं आपको कंपनी का सेटअप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर ये सेटअप आपको पता नहीं रहेगा तो जब आप एंट्री करोगे ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्यों आई है. Hmm. गॉट इट, सो एटलीस्ट Yeah, got it. ये आपको पता होना जरूरी है. ये आपको Yeah. अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट जब प्रैक्टिकल एंट्रीज डालोगे ना तब आपको ये सारी चीजें रियलाइज होगी कि ये Yeah. क्यों समझा रहे थे. ओके, एंड इट्स Yeah. ओके, वी विल गो विथ दिस अगेन ऑल्सो. हम Yeah. दोबारा भी ये करेंगे. ओके, Yeah. ओके, सो नाउ ये सेल्स फॉर्म कंटेंट. अब क्विकबुक जो है एक इट्स अ काइंड ऑफ वो कंसिडर करते हैं बहुत से कीवर्ड्स इन आईटी लैंग्वेज. तो सेल्स फॉर्म, फॉर्म मतलब जो A4 साइज का जो पेज है इनवॉइस का, दैट इज दे कॉल देम फॉर्म. और कंटेंट मतलब कि जो भी चीज वहां पे लिखी हुई है फॉर्म इनवॉइस फॉर्मेट के ऊपर. अगर हम इंडियन मेथोडोलॉजी में कहें तो जस्ट
ओके, सो हियर प्रीफर्ड इनवॉइस टर्म्स। अब कोई भी इनवॉइस क्रिएट होगा तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नेट 30 डेज की पेमेंट टर्म्स प्री डिफाइन हो जाएगी। अगर हमें इसे 15 दिन करना है तो हम 15 दिन भी कर सकते हैं, या तो अगर हमें कोई क्रिएट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो लेट्स मेक इट ड्यू ऑन रिसिप्ट। कोई भी इनवॉइस क्रिएट होगा What is net 15, net 13? ऑन, ओके। नेट 15 मतलब क्या होता है? प्रीफर्ड इनवॉइस टर्म। कोई भी अगर हम कस्टमर को इनवॉइस रेज करेंगे, ओके, तो अगर हम लिखेंगे नेट 15 मतलब ड्यू इन नेट 15 डेज, आपको जो इन्वेस्ट किया गया हुआ है उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट 15 दिन के अंदर कर देना है। दैट इज पेमेंट टर्म्स जो कहते हैं ना, बिजनेस के अंदर पेमेंट टर्म्स रहती है ना कि 15 दिन बाद पे करना है। क्रेडिट पे जब कोई भी माल सेल होता है तो उसके अंदर पेमेंट टर्म्स आती है। Yeah, गॉट इट? yeah, got it. ओके, तो दैट इज कॉल्ड नेट 15 एंड नेट 30। Yeah. 100% गॉट इट ना? इफ यू एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। अगर पता नहीं चला देन यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन इन अ प्रैक्टिकल वे, तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी? प्रैक्टिकल वे में समझा तो एक बार सच तो फुली क्लियर हो जाएगा। सॉरी? प्रैक्टिकल में एक बार समझा दो तो फुल क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। देखो, ये जो होता है, कोई भी कंपनी उनके कस्टमर को कोई भी चीज सेल करती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि कैश में ही सेल करती है कि यहाँ या पे इनवॉइस गया और वहां से पेमेंट आ गया। तो वो क्या होते हैं, उनके टर्म्स रहते हैं कि भाई पेमेंट टर्म्स कितने टाइम का रहेगा। तो कहते हैं कि नेट 15 दिन, मतलब 15 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से गुड्स जो है वो डिस्पैच होता है, उसके साथ इनवॉइस जाता है, और इनवॉइस के अंदर पेमेंट टर्म्स लिखी होती है नेट 15 डेज। ऑलराइट। ओके, तो जो बायर रहते हैं उनको 15 दिन के अंदर कस्टमर जो सेलर है उनको पेमेंट करना होता है। और वो सारी जो चीजें होती है वो इनवॉइस के अंदर मेंशन करनी पड़ती है, राइट? ऑलराइट। और ये या जो चीजें यूएस के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। या ओके, या दैट इज व्हाई इट इज शोइंग नेट 15। कुछ भी पता नहीं चले ना सर, मुझे पूछना, मैं आपको डिटेल में उसी हिसाब से समझा दूंगा, सो डोंट वरी। या श्योर। देखो, मैं यहाँ पे आपको ये सब समझाने बैठा हूँ, ठीक है? अगर आप मुझसे नहीं समझोगे तो फिर कहाँ से समझोगे? ओके, हाँ तो डोंट वरी। कोई भी क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन हो, इवन दो यू कैन आस्क इट। या श्योर। क्योंकि होगा क्या कि आपके लिए, आपको समझोगे सिली क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। या ओके, या तो हियर वी आर सेटिंग नेट 15 प्रीफर्ड डिलीवरी मेथड। अब ये प्रीफर्ड डिलीवरी मेथड मतलब क्या है? कि जो इनवॉइस है वो आपको तुरंत सेंड करना है। इसके अंदर फैसिलिटी, जैसे मैंने कहा कि जब इनवॉइस क्रिएट करते हो ना, तो एक या ऑप्शन सेव एंड सेंड। या जैसे आप सेव एंड सेंड करते हो तो कस्टमर के ईमेल आईडी पे इनवॉइस चला जाता है। वहाँ पे फिजिकल कॉपी बहुत रेयर केसेस में जाती है, सॉफ्ट कॉपी ही जाती है हर जगह पे। ओके, सो जैसे आप करते हो, पहला ऑप्शन है प्रिंट लेटर। आपने इनवॉइस बना दिया बट आपको उसको पीडीएफ नहीं बनाना है, सो प्रिंट लेटर का ऑप्शन आता है। ये कौन सा ऑप्शन है? जब आप इनवॉइस सेव करते हो तब के ऑप्शन है। या ओके, इनवॉइस जब हम सेव करते हैं ना, क्योंकि सेल्स मतलब इनवॉइस, ओके। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, सेल्स फ्रॉम कंटेंट। तो यहाँ पे हम प्रिंट लेटर, सेंड लेटर, बट हम करेंगे यहाँ पे नन। रीजन कि जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो हमें राइट बॉटम में एक ऑप्शन आएगा, सेव एंड सेंड, सेव, सेव एंड क्लोज। ओके, तो ये 3 से 4 अलग अलग ऑप्शन आएंगे, सेव एंड प्रिंट। ओके, फिर 3 से 4 ऑप्शन आएंगे, इस वजह से हम यहाँ पे नन रखेंगे तो ऑप्शन आएंगे। बट अगर मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर दूंगा तो हर बार मुझे यही ऑप्शन वहाँ पे शो होगा। अगर मैं नन ऑलराइट। नन करता हूँ तो मुझे मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। ऑलराइट। शिपिंग, अगर हमें कोई शिपिंग इंटीग्रेट करना है, इनवॉइस के अंदर शिपिंग अमाउंट ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे। तो जो इनवॉइस का टेम्पलेट आएगा उसके अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा शिपिंग का, कि आप शिपिंग भी डाल सकते हो। ओके, कस्टम ट्रांजेक्शन नंबर। ट्रांजेक्शन मतलब जो इनवॉइस क्रिएट होता है उसका नंबर जो है हम कस्टम भी डाल सकते हैं, मतलब हमारे हिसाब से डाल सकते हैं। अगर हम इसे बंद कर देंगे तो वो ऑटो ट्रांजेक्शन ले लेगा। 1001, 1002, 1003, 1004 इन अ सीक्वेंस, इट विल टेक ऑटोमेटिकली। ओके, या देन सर्विस डेट।
service date is required when using revenue recognition. Okay, you know Yeah. what this uh, revenue recognition, it is deferred revenue. कोई भी, शायद आपने इसका आंसर मुझे दिया था कि सर्विस जो है वो हम फ्यूचर में देने वाले हैं, उसका पेमेंट हमें एडवांस में मिल चुका है, Yeah. राइट? सो दैट इज कॉल्ड अर्न अर्न रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। सर्विस फ्यूचर में देने वाले हैं, उसका पेमेंट हमें अभी से मिल चुका है। ओके, दैट इज Yeah. डेफर्ड रेवेन्यू। आई विल एक्सप्लेन दिस व्हेन वी विल डू प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस। डिस्काउंट अगर हमें इनवॉइस के अंदर शो कराना है तो हम वो भी शो करा देंगे। डिपॉजिट, अगर कस्टमर की डिपॉजिट कितनी आई हुई है अगर वो भी हमें शो कराना है इनवॉइस के अंदर तो वो भी हम करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कस्टमर अगर माल वगैरह परचेस करते हैं तो वो एक अमाउंट की डिपॉजिट देते हैं कंपनी में कि इतनी डिपॉजिट रखो, बाद में हम ट्रांजेक्शन करते हैं। सो दैट वी कैन शो ओवर हियर, बट हम यहाँ पे मेंशन नहीं करें एक्सेप्ट टिप्स। और होटल इंडस्ट्रीज वगैरह है तो वो ये सब चीज टिप्स वगैरह मेंशन करनी होती है तो वो हम यहाँ पे Mm. इनेबल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इनेबल नहीं करेंगे। नाउ अबाउट टैग, दिस इज समथिंग यूजफुल। टैग मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है? आपके पास 40 से 50 ट्रक्स हैं, तो हर एक ट्रक के अंदर फ्यूल फिल होता है। अब कौन से ट्रक के अंदर फ्यूल फिल हुआ है और कितना फ्यूल फ्यूल गया हुआ है वो आप कैसे ट्रैक करोगे, राइट? तो उसके लिए क्या होगा, टैग का एक ऑप्शन दिया गया हुआ है, तो वहाँ पे आप जिस तरह से क्लास है लोकेशन है वो कैसे काम करता है, बट वो हमें असाइन करना पड़ता है, राइट? और सेम वे में टैग भी है, और टैग जो है ओपन है, मतलब आप कोई भी टैग बना सकते हो। जैसे कि 0311 नंबर का ट्रक है, उसके अंदर कितना फ्यूल गया हुआ है, उसका मेंटेनेंस अभी तक का कितना आया हुआ है, अगर टायर रिप्लेसमेंट हुआ है तो कितने हुए हैं, अगर हमने सैलरी दी है ड्राइवर को तो कौन से ट्रक का वो ड्राइवर था, और अगर इनकम हुई है तो कौन से ट्रक में माल ट्रांसपोर्ट हुआ। तो एक टैग का ऑप्शन आता है इनवॉइस के अंदर, और फिर क्या होता है वो टैग का ऑप्शन आपने असाइन, मतलब वहाँ पे टैग मेंशन कर दिया, ट्रांजेक्शन सेव कर दिया, फिर एक रिपोर्टिंग ऑप्शन, वहाँ पे आप टैग वाइज रिपोर्ट रन कर सकते हो। तो जब मैं 0311 के टैग का रिपोर्ट रन करूंगा तो मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि इसमें से इनकम कितनी हुई है, ये ट्रक के पीछे मेरा एक्सपेंस कितना हुआ है, इसका इनकम कितना हुआ है। All right. सो इट इज पर्टिकुलर, कह सकते हैं कि व्हीकल वाइज हो गया, या डिपार्टमेंट के लिए तो क्लासेस वगैरह हमारे पास है, तो ये व्हीकल हो गया या मशीनरी हो गया, ये पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट हो छोटा मोटा अगर उसे हमें मैनेज करना है तो हम यहाँ से सब चीज़ें कर सकते हैं। Yeah. तो इसको हम अभी करते हैं सेव। नाउ इनवॉइस पेमेंट, एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट इंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्ट स्वाति टू पे, ये हम एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अकाउंटेंट, हमारा जो क्विक बुक्स का लॉगिन है वो अकाउंटेंट का है। Mhm. ओके, एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट मतलब जो मैंने इनवॉइस की बात की ना, कि कस्टमर को इनवॉइस जाते हैं, उनको अंदर शो होता है रिव्यू एंड पे, तो वहां से वो Yeah. इनवॉइस कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट करेंगे सीधा पेमेंट आ जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर बैंक में, और क्विक बुक्स के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री भी बढ़ जाती है। नाउ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब इन्वेंट्री। Mm. ओके, नाउ शो प्रोडक्ट और सर्विस कॉलम ऑन द सेल्स फॉर्म, मतलब इनवॉइस के अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शो करानी है तो यस वी हैव टू। टर्न ऑन प्राइसिंग रूल, ये हम ऑन कर देंगे। टर्न ऑन प्राइसिंग रूल मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है जिसका रेगुलर रेट है $10, और आपने गलती से एक इनवॉइस रिकॉर्ड कर दिया है जो है आप इनवॉइस रेस कर रहे हो उसके अंदर आपने लिख दिया है $15, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि समथिंग इज रॉन्ग, द एवरेज रेट फॉर दिस प्रोडक्ट इज $10 वेर यू हैव क्रिएटेड विथ $15। अब ये क्या होता है कि हम इनवॉइस बनाने बैठे बट हमको ध्यान नहीं और हमने गलत रेट डाल दिया,
तो ऐसे केसेस में सिस्टम हमको नोटिफाई करेगी। ओके। ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर रेट। क्वांटिटी, अगर हम इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं, सो वी हैव टू मैनेज इन्वेंट्री ऑल्सो, राइट, कि Yeah. कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना जा रहा है। देन ये जो है ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, तो इसको हम रखेंगे ट्रैक इन्वेंट्री फॉर सेल्स चैनल। अब ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स चैनल? अगर कोई क्लाइंट मल्टीपल जगह पे सेल कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है, शॉपिफाई के स्टोर पे सेल हो रहा है, सैम कार्ड का स्टोर है वहाँ पे सेल हो रहा है, देन उन्होंने कोई इवेंट वगैरह की है वहाँ पे सेल हो रहा है, या तो उनकी खुद की वेबसाइट है वहाँ पे भी सेल हो रहा है। तो मल्टीपल जगह पे सेल हो रहा है, तो उनका जो स्टॉक है वो मल्टीपल जगह पे मैनेज करना पड़ेगा। Yeah. कौन सी इन्वेंट्री कहाँ पे कितनी पड़ी हुई है वो भी मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेजोन में तो कैसा होता है, उनके स्टोर पे आप मतलब उनके जो गोडाउन होते हैं वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो आपकी इन्वेंट्री। ओके। कहीं पे एग्जीबिशन वगैरह है वहाँ पे अगर आप ले गए हो इन्वेंट्री तो वहाँ पे आपको स्टोर करनी पड़ेगी। सो दिस ऑप्शन इज फॉर दैट काइंड ऑफ सिनारियो। तो इसे हम इनेबल नहीं करेंगे, इसे हम डिसेबल ही रखेंगे। ओके। Yeah. रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन इट्स अ, जो अभी मैंने कहा ना कि सर्विस जो है वो हम फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाले हैं, बट उसका पेमेंट जो है वो हमें एडवांस में मिल चुका है। और वैसे कौन से सिनारियो में ये चीज़ होती है? सो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चल रहा हो, जैसे कि हेल्थ एंड कॉन्शियस कंपनी है तो डाइट प्लान प्रोवाइड कर रही है। तो डाइट प्लान में क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं एडवांस में सब्सक्रिप्शन देते हैं, और अकॉर्डिंगली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड करती है उनको डाइट प्लान ऑन अ पीरियडिकल बेसिस। तो कस्टमर जो है वो एडवांस में पेमेंट करते हैं, सो दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड और कॉन्ट्रैक्टर, और इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह हो या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम रहता है, तो उसमें कस्टमर्स जो है वो एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो वो भी हमारा Yeah. डिफर्ड रेवेन्यू, मतलब कि आपको पेमेंट एडवांस में मिला हुआ है। जैसे कि हम बिल वगैरह रहते हैं, जैसे कि वेंडर है, कस्टमर एंड वेंडर, यू नो ना डिफरेंस बिटवीन देम, यू नो Yeah. दैट, Yeah. राइट? ओके। सो वेंडर को हम एडवांस पेमेंट अगर करते Yeah. हैं तो वो हमारी एसेट्स होती है, और वैसे ही Yeah. कस्टमर अगर हमें एडवांस पेमेंट करते हैं सो दैट बिकम्स अवर लाइबिलिटीज। Not like this. Yeah. गॉट इट? इसी वजह से हम उसे Yeah. डिफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। तो कौन से बिजनेस Yeah. मॉडल के अंदर ये आ सकता है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल, Okay, सॉफ्टवेयर but कंपनी होती है, ठीक है, yeah. कि एवरी मंथ $200 का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का चार्ज है आपको, जो आपको एक साल का एक साथ देना है। सो द कंपनी गोना पे 2400 इन एडवांस टू अस। तो 2400 तो हमें एडवांस में मिल चुके हैं, बट हमें सर्विस तो देनी है 12 महीने तक। गेट इट? Yeah. सो 12 महीने तक हमें सर्विस देनी है, सो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू। ई कॉमर्स बिजनेस रिसीव पेमेंट अपफ्रंट बट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू अपॉन डिलीवरी। अब ये जो है ना, इतने मॉडल पे आप समझोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स में कैसा होता है कि जैसे कि अमेजोन पे अगर हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, हमने पेमेंट कर दिया, Hmm. और हमें पता चल चुका कि हमने पेमेंट कर दिया। अब जो सेल कर रहे हैं उन्होंने प्रोडक्ट तो अभी डिस्पैच किया नहीं है, बट उनको पैसा एडवांस में मिल चुका, Yeah. राइट? सो दैट इज ऑल्सो डिफर्ड रेवेन्यू। तो जब वो डिस्पैच करेंगे उसके बाद वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
तब तक नहीं कर सकते, तब तक वो उनकी लायबिलिटी है, क्योंकि कस्टमर तो कभी भी ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो उन्हें रिफंड करना पड़ेगा ना, All right. राइट। तो ये जो टैब है उसी के लिए Hmm. है, कंसल्टिंग सर्विसेज एंड लॉ फॉर्म। कंसल्टिंग सर्विसेज और लॉ फॉर्म में कैसा होता है कि एडवांस में पेमेंट दिया जाता है, क्योंकि कंसल्टेंट ऐसा नहीं कहते कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आप पेमेंट करना, तो कस्टमर को उनको एडवांस में ही पेमेंट करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन जो है हम उसको ऑन रखेंगे, इसको करेंगे हम सेव। हाँ, अब ये है लेट फीस, डिफॉल्ट चार्ज अप्लाई टू ओवरड्यू इनवॉइस। हम इसे ऑन नहीं रख सकते, रीजन, किसी कस्टमर ने हमको पे किया, हमने नेट पेमेंट टर्म डाल दी 15 दिन की, किसी कस्टमर ने हमको 15th डे को पेमेंट किया, अब हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, उसमें 2 दिन चले गए, तो सिस्टम क्या करेगी, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा ना तो सिस्टम अपने आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देगी लेट फीस का। इन अ प्रैक्टिकल टर्म्स दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वी ऑलरेडी रिसीव द पेमेंट, राइट। Then progressive invoices, we have to keep this on. Progressive invoices, let me explain what is it. See, when we enable this, progressive invoices means एक प्रोजेक्ट है, सॉरी एक सेल्स ऑर्डर है 10,000 यूनिट का, अब हम डिस्पैच करेंगे 1,000 यूनिट, तो एक इनवॉइस बनेगा, देन अगेन 2,000 यूनिट करेंगे, फिर 3,000 एंड 4,000, इस तरह से 10,000 यूनिट हम डिस्पैच करेंगे, तो एक ऑर्डर के सामने 4 इनवॉइस क्रिएट, so that is called progressive invoices। as and when required हम इनवॉइस रेज करते हैं और अगेंस्ट सिंगल पीओ, जैसे सेल्स ऑर्डर होता है ना उसके सामने, तो ये इसलिए ये अपडेट करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये हम अपडेट करेंगे सेल्स फॉर्मेट, इनवॉइस टेम्पलेट अपडेट होगा, क्योंकि उसके अंदर 10,000 यूनिट है और हमको एक इनवॉइस रेज करना है कि हमने 20%। Your voice is इज इट कमिंग नाउ? yes, ओके, तो coming now. ओके, इनवॉइस टेम्पलेट अपडेट इसलिए होगा क्योंकि इट्स अ प्रोग्रेसिव इनवॉइसेस, और प्रोग्रेसिव इनवॉइसेस मतलब एक परचेज ऑर्डर के सामने हम मल्टीपल इनवॉइस रेज करेंगे, जैसे कि 10,000 यूनिट। ओके, नाउ वी आर इस डिस्पैचिंग 20% यूनिट्स। ओके, तो हम सिर्फ पहला इनवॉइस बनेगा 2,000 यूनिट का, और दूसरा हम डिस्पैच कर रहे हैं 30% यूनिट्स ऑफ एंटायर पीओ, तो दूसरा इनवॉइस बनेगा 30% का। तो जब एक परचेज ऑर्डर के सामने मल्टीपल इनवॉइसेस अगर हम क्रिएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इनवॉइसेस। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे हम इनवॉइस रेज करते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जब मशीनरी इंस्टॉलेशन का बिजनेस होता है वहां पर। ओके, All right. मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन का, जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे एक मशीनरी बनानी है, अब एक मशीनरी के अंदर 18 से 20 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो जैसे जैसे मॉड्यूल बनते जाते हैं डिस्पैच होता जाता है, वैसे वैसे उसका इनवॉइस कस्टमर को किया जाता है। ओके, सो दैट इज दैट वन। ईमेल टेम्पलेट, ईमेल का एक टेम्पलेट होता है कि दिस इज द टेम्पलेट, रिमाइंडर फॉर, रिमाइंडर योर पेमेंट टू स्वाति इज ड्यू, जब इनवॉइस आता है ना, Yeah. किसी भी कस्टमर को इनवॉइस आएगा तो इस हिसाब से एक टेम्पलेट, फर्स्ट डे है तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, ओके, डे आफ्टर टुमारो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके, तो ये Yeah, क्या होता है, sure. जब इनवॉइस जाता है ना कस्टमर को तो एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, कुछ तो लिखा होना चाहिए इनवॉइस के अंदर, तो ये सारी चीजें Yeah. लिखी होती है, तो यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं।
Okay, so we are going to keep this as it is. Online. Just reminder emails. हाँ, reminder email Yeah. option for all sales form. ईमेल ऑप्शन फॉर ऑल सेल्स फॉर्म, जो सेल्स का जो फॉर्म जाएगा उसके अंदर ईमेल का जो फॉर्मेट रहेगा उसमें क्या क्या बताना है, तो शो फुल डिटेल इन ईमेल और पीडीएफ अटैच। मैंने आपको कहा था ना कि कस्टमर को इनवॉइस जाता है तो वो वहाँ से रिव्यू एंड पे भी कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ के अटैचमेंट से इनवॉइस डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हियर यू All कैन सी right. ऑनलाइन इनवॉइस। The connection is breaking, I guess. Invoice, online invoice, HTML format and plain text. Okay. So we are going to use online invoice. Just save. So show aging table at the bottom of statement. Aging table मतलब क्या होता है? uh, किसी कस्टमर के 15 से 20 इनवॉइस बाकी है, अब कौन सा इनवॉइस कितने पीरियड के लिए ड्यू हुआ है, जैसे कि 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90 जो डेज होते हैं ना, और उसमें नीचे अमाउंट लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड एजिंग रिपोर्ट। हम जब एजिंग रिपोर्ट रन करेंगे देन आई रिमेंबर, आई रियलाइज यू दिस वर्ड कि ये क्या कहना चाहते हैं, एजिंग रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर द सेल्स फॉर्म। एक्सप्रेस का जो है वो बहुत छोटा है। इसको दबाया थोड़ा भैया, जो बंद कर मोर इंटरनेट बंद कर दो, मोर नेट चले। बिल्स एंड एक्सपेंसेस। Okay, so bills and expenses show item table on the expense and purchase form. Item table means product and services. Product and services is equal to inventory. Okay, so when we record bills, there must be inventory item should be showing on our form. तभी तो हम जब परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट आए हुए हैं, और जब हम सेल करेंगे तो उसमें से उतने यूनिट लेस होंगे और तब जाके हमें पता चलेगा कि कितना यूनिट बैलेंस बचा हुआ है। Show tag field on the expense and purchase form. You know what is tag field? Yeah, you have told me. Yes, right. Track expense and item by customers. ये भी हम रखेंगे on. Make expense and item billable. We are going to skip this. Billable मतलब क्या होता है? किसी कस्टमर के बिहाफ में हमने खर्चा किया हुआ है और अब हमें वो खर्चा कस्टमर से वापस लेना है। Yeah. Okay. This is the bill and expenses. Purchase order. Use purchase order. We are keeping this on. Okay, क्योंकि हम सेल्स में भी ये चीज यूज करेंगे और परचेज में भी यूज करेंगे। फिर मैसेज, डिफॉल्ट में ईमेल मैसेज सेंड विद परचेज ऑर्डर, द सेम टेम्पलेट व्हिच वी जस्ट शो हियर, दिस काइंड ऑफ, प्लीज फाइंड आवर परचेज ऑर्डर अटैच्ड टू दिस। ओके, इट्स जस्ट अ टेम्पलेट email them. Yes. Now then time, it's a just about time sheet, so no need to go into this in detail. फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो मंडे वगैरह जो होता है वो हम सेट कर सकते हैं। टाइम शीट फील्ड, ये टाइम शीट का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सो डोंट वरी। और ये जो है टाइम ट्रैकिंग के लिए है, मैनेज कियोस्क, इट्स अबाउट टाइम ट्रैकिंग, so we are not going into that much for that IT part, and it is not useful for us at least. So and now the last one is advance. एडवांस में क्या आएगा कि फर्स्ट मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर इट्स जनवरी, वहाँ पे जनवरी टू दिसंबर का अकाउंटिंग होता है। फर्स्ट मंथ ऑफ द इनकम टैक्स ईयर सेम एज फिजिकल ईयर,
अकाउंटिंग मेथड अक्रूवल जो हमने सेट की थी, ओके। क्लोज द बुक्स, ऑफ, हम ऑफ रखेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट इनेबल अकाउंट नंबर, अगर चार अकाउंट नंबर वहाँ पे शो कर, डू यू नो, कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट रहता है उसके लिए आगे चार डिजिट रहते हैं अकाउंट नंबर के, इफ यू वांट टू शो। आर यू ऑल विल देयर? Sir, wait a minute, thank you so much. या No, no, sir, you are audible now. ओके, जस्ट अ मिनट। Hmm. क्लोज द बुक ऑन इनेबल अकाउंट नंबर, अच्छा ओके, द इनेबल अकाउंट नंबर में जस्ट मिनट, लेट मी सेव दिस फर्स्ट। मेरे को चेंज ही नहीं किया वहाँ पर। या द जनवरी सेम एज फिजिकल ईयर, अकाउंटिंग मेथड अप्रूवल, क्लोज द बुक ऑफ रखेंगे हम। एंड इनेबल अकाउंट नंबर, जो चार्ट ऑफ अकाउंट रहते हैं उसके आगे चार डिजिट के नंबर आते हैं, Yeah. if you remember, okay, so if you want to keep them open then we can, and if you don't then it's okay। शिपिंग अकाउंट, शिपिंग इनकम, शिपिंग अकाउंट कौन सा है, सेल्स के अंदर आपको पता हो तो हमने शिपिंग इनेबल किया था, राइट, तो ये असाइन हो जाएगा शिपिंग इनकम के अंदर। Alright. डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट मतलब डिस्काउंट गिवन के अंदर असाइन हो जाएगा। Yeah. टिप्स अकाउंट ये हमने इनेबल नहीं किया हुआ है, ओके, तो इट्स Yeah. बिलेबल एक्सपेंस इनकम अकाउंट, बिलेबल एक्सपेंस इनकम, कस्टमर Yeah. के बिहाफ में जो भी हम खर्चा करेंगे तो अगर हम वो करेंगे तो वो हमको बिलेबल में शो हो जाएगा। बट ऑटोमेशन, दिस ऑटोमेशन, प्री फिल्ड फॉर्म विथ प्रीवियस एंटर्ड कंटेंट, कोई भी कस्टमर का अगर हम इनवॉइस क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसका जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन होगा ना वो पूरा का पूरा कॉल होके आ जाएगा। Alright. तो हमें क्या बार बार कोई वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट्स, ये हम क्रेडिट जो है हम इसको ऑफ रखेंगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। क्रेडिट में क्या होगा कि कस्टमर के चार इनवॉइसेज ओपन है और हमने कस्टमर को क्रेडिट दी एक इनवॉइस के अगेंस्ट में, अब वो हमें पता है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने क्रेडिट दी थी। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो क्रेडिट कोई भी इनवॉइस के सामने एडजस्ट हो जाएगी, एंड दैट इज रॉन्ग, करेक्ट। So that's why we are going to keep this off। ऑटोमेटिकली इनवॉइस अनबिल्ड एक्टिविटी, ये भी हम ऑफ रखेंगे। अनबिल्ड एक्टिविटी मतलब बिलेबल एक्सपेंस, हम इसे भी ऑफ रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि कब बिल इनको करना है। Yeah. ऑटोमेटिकली अप्लाई बिल पेमेंट, इसके भी हम ऑफ रखेंगे। किसी कस्टमर के पांच बिल खड़े हुए हैं वेंडर के, किसी वेंडर के पांच बिल खड़े हुए हैं और हर एक की अमाउंट सेम है, 500 500 500। अब हमने 500 का पेमेंट किया तो हमें पता होगा ना कि हमने कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया हुआ है, ओके, सो दैट्स व्हाई वी कीप दिस ऑफ, और वो हम मैन्युअली अप्लाई करेंगे क्योंकि पांच इनवॉइस, पांच बिल ओपन होंगे तो आपको तो पता नहीं होगा कि कौन से, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कौन से बिल के सामने पेमेंट किया है जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, करेक्ट। देन प्रोजेक्ट, यूज प्रोजेक्ट फाइनेंस ट्रैकिंग, जो मैंने कहा था ना कि प्रोजेक्ट वाइज आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो, दिस इज दैट। करेंसी, बेस करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। मल्टी करेंसी हमने रखा हुआ है ऑफ। मल्टी करेंसी मतलब क्या होता है कि आप एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल करेंसी के अंदर भी बिल रिकॉर्ड कर सकते हो या इनवॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि आप यूएस चाइना से आपने कुछ इंपोर्ट किया तो आपके पास जो बिल आया हुआ है वो
चाइना की कौन सी है करेंसी? चलो जापान ले लेते हैं, तो जापानी रियन। जापानी रियन, जापान से आपने कुछ मंगाया तो उनका बिल आएगा वो जापानीज लैंग्वेज में आएगा, प्लस उनकी करेंसी में आएगा। तो Okay. आप इसके अंदर बिल रिकॉर्ड कर सकते हो जापानीज येन के अंदर, JPY उसकी शॉर्ट करेंसी है। ओके, और सिस्टम क्या करेगी, एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली गेट करके इनवॉइस बिल को डॉलर में कन्वर्ट कर देगी। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ मल्टी करेंसी। Multi-currency. सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट allow member to find me. It's about networking, so don't worry about it. Other preferences, Mhm. date format MMDDYY। यहाँ पे फॉर डेट फॉर्मेट जो रहेगा MMDD एंड YY रहता है। करेंसी फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। वन इफ डुप्लीकेट चेक नंबर इज यूज, अगर एक ही चेक नंबर के दो ट्रांजेक्शन होंगे तो हमें नोटिफिकेशन आएगा, पॉपअप आएगा कि यू आर यूजिंग द सेम नंबर। वन में इफ आई एंटर अ बिल नंबर दैट इज ऑलरेडी बीन यूज फॉर दैट वेंडर। एक ही वेंडर के अगर हम एक ही वेंडर का अगर मैं दूसरा बिल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके अंदर भी